Hi everyone, I'm back from US and it's approximately 8:15 at night in Delhi over here. I had wanted to record this video a little earlier, but then I couldn't get time. I was jet lagged, I was a little exhausted, and there was a lot I wanted to discuss. Although the level of excitement has gone down a little, and you must be thinking, is this woman still alive recording this video? Because it's been a month since I recorded my last video. There was a lot to be discussed, not just about my US experience and the things I observed from the perspective of, from the lens of astrology, but also the new year is around the corner. 2025, what it has in store for all of us, the major transits, which I was supposed to talk about, and the concerns. Although this video is not going to be very much in detail about the transits of next year, but still, we will discuss things in brief. What we can expect in general from 2025 and my trip to US. Okay, as I had told you in my last video, I was too exhausted to be ready, and I was just about to go for sleep, but then I thought, okay, I am looking somebody not in a lookable face, like it's okay to record a video like this. तो मैंने सोचा कि let's move ahead and start recording and start talking. So I visited like 4 states, as I had told in my last video about LA, New York, Washington DC, and Washington State. How was the experience over there? But let me begin with the kind and type of people I observed or I found in 4 different states. It speaks volume about the state, their behavior, their culture, their lifestyle, and the way they behave is because of the lifestyle and the culture. It is all about the mindset. तो सिएटल में मैंने देखा कि people are more fitness conscious. I could not see even a single fat man or a woman there in Seattle. Maybe that was my experience. There must be. Like in my entire stay of a week or approximately 8, 9 days, 10 days over there, I didn't come across a single one. That's a slow city for sure. But to my amazement, people can jog and run throughout the day. You step out of the home, you'll find somebody or the other running, jogging, wear their gym dress code, all that geared up well and nice. चाहे सुबह का समय हो या रात का समय हो, they are running, jogging, doing exercises. They're so fitness conscious. So that was first thing I noticed about Seattle. अच्छा, चूंकि दैट वाज माय फर्स्ट स्टेट वेयर आई वेंट, तो मुझे लगा कि ठीक है, although Indian food is available, I'm Indian, I love my Indian food and I'm more habitual of eating that. But I also took it as an assignment or a challenge to uh, make some amendments to my lifestyle, like changes, and make it more healthier. Because one thing I noticed there, कि salad is more common as a meal. If I talk about the food in US, across the 4 states, like यहाँ क्या होता है ना, आप जाओ, आपको छोले भटूरे और आपको बर्गर मिल रहा है, पाव भाजी मिल रही है, गोलगप्पे मिल रहे हैं. दे आर ऑल लाइक हाई ऑन टेस्ट बड्स, but very low as far as health is concerned. They are low on the health and high on the, harming and creating all the destruction, like fat in your body and several type of indexes. It raises the indexes in your body. I am not a doctor, so I'll not name any of them right here in this video. तो द बेसिक डिफरेंस यस आई फाउंड कि सैलेड, हालांकि वहां पे भी उसको जंक फूड ही मानते हैं समहाउ. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज दे ईट पैनकेक्स और दे कुक कुकीज एट देयर होम्स, और मे बी दे ईट पास्ता और वट एवर. बट सैलेड, सिर्फ पत्ते. सैलेड मीन्स लिटरली सैलेड. मतलब बॉइल्ड एग्स ज़्यादा से ज़्यादा, चिकन, बीफ, पोर्क इज मोर कॉमन. Beef, pork, ham, turkey,
the several variety of those kind of, because we are not habitual in India. We get to eat chicken or mutton or fish at max, or maybe shrimps, but nothing as such like beyond that. And that too as a very common as a staple food throughout the morning and night. इंडिया में इतना नॉनवेज हम नहीं खाते हैं जितना वो लोग खाते हैं, मतलब वो सुबह भी चिकन खा सकते हैं, वो दोपहर को भी खा सकते हैं, रात को भी खा सकते हैं। यहाँ हम लोगों के नखरे खत्म नहीं होते हैं कि हम तो सुबह नहीं खाते, हम थर्सडे को नहीं खाते, हम ट्यूसडे को नहीं खाते, और हम वैसे खा लेते हैं। ऑल दो मैन एस्ट्रोलॉजर एंड यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि मैं आपको ये कहने वाली हूँ कि नहीं नहीं हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है ऐसा कि ईश्वर ने जो चीज़ बनाई है, आप नहीं खाना चाहते आप मत खाएं, लेकिन अगर मतलब जो आपको ईश्वर दे, आपको घृणा नहीं होनी चाहिए ना। जैसे हर चीज़ बर्दाश्त करना सिखाया जाता है। अगर आपका धर्म है कि नहीं खाना है, मतलब आपने संकल्प ले लिया, तो आप बिल्कुल मत खाइए और भूखे रह कर दिखाइए। लेकिन अगर कोई जैसे बौद्ध धर्म है, तो उसमें है कि आपको जो मिल जाए वो खाइए। आपको अगर रोटी मिले या पत्ता मिले या कुछ ना मिले या चाहे मांस मिले, तो जो ईश्वर की इच्छा है आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। सो दैट इज काइंड ऑफ माई फंडा। इफ आई एम प्रैक्टिसिंग अ रेमेडी, तो मैं कहूँगी कि खाइए या मत खाइए, एक्टिवेटिंग एनर्जीज ऑफ प्लैनेट्स। Otherwise, I am not a very, a staunch supporter of so-called high-end morality, which is used to control people. तो आप अपने हिसाब से देखिए, अपनी आस्था के हिसाब से देखिए, और अपने ग्रह दशा के हिसाब से देखिए आपके लिए खाना सही है नहीं है, क्या करना है, वो आपका निजी फैसला है। वहाँ पे नॉनवेज बहुत अच्छे से मिलता है, सैलेड मिलती है, पत्ते हैं, तरह तरह के, लेटस है, स्पिनच है, ग्रेन्स कम ही है, क्विनोआ मिल जाएगा आपको, बीन्स मिल जाएगी, क्योंकि मेक्सिकन फूड इज़ रियली प्रेवलेंट ओवर देयर, whether you are in New York or Washington DC or wherever you are like that in the US maybe, you get to eat salads and pastas and more Italian cuisine. Pizzas, burgers are also very common over there. But I preferred a salad and soup. Soup, okay. When we talk about soup, you must have heard eat your soup. They say eat your soup because it is that thick that you eat it like a sabzi. तो इंडिया में तो इतना सूप पतला होता है। आई ऑलवेज वंडर्ड थ्रू आउट माई चाइल्डहुड कि यार व्हाई दे से ईट योर सूप, व्हाई डोंट दे से ड्रिंक योर सूप, इट इज तो सच पतला, हम तो सब्जी उबाल के उसको पी जाते हैं। तो वहाँ पे इतना गाढ़ा सूप मिलेगा, जैसे शाही टोमेटो सूप के नाम पे शाही पनीर की ग्रेवी है, थिक टाइप की आपको मिल रही है, तो आप वो खाइए। तो इस तरह से रहा। फिर हम उसके बाद सिएटल के बाद हम गए वॉशिंगटन डीसी। That city also gives you, typical vibe of any US or Hollywood series you must have seen, maybe Person of Interest or any other, kind of a series like that. कि भाई surveillance हो रहा है, people are more grim, more serious, and more politically active, more politically aware. They are serious. They're walking serious, like that city has the vibe. Like Delhi में भी एक वो vibe आपको मिलती है, क्योंकि इतनी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स है, पार्लियामेंट है, इतने सारे सरकारी ऑफिसेज हैं। सो यू ऑल्सो गेट टू सी इट ओवर देयर व्हेन यू गो टू कैपिटल हिल और मे बी वार मेमोरियल और अदर लाइक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आपका बिल्डिंग्स होती हैं, अगर वहाँ जाएंगे तो वैसा मिलेगा। फिर वहाँ पे इट्स काइंड ऑफ अ न्यूट्रल, जितना मैं देख पाई वहाँ पे। अच्छा, मेरे साथ लकी ये रहा कि जब मैं गई, हमने ऐसे प्लान भी किया था कि हम घूमें इस तरह से कम भीड़ मिले, क्योंकि बहुत पॉपुलेटेड होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू न्यूयॉर्क। वॉशिंगटन डीसी के बाद जब हम न्यूयॉर्क गए, इट वाज सो क्राउडेड, सो वी चोज टाइमिंग्स वेयर वी कुड एक्चुअली रोम लाइक फ्रीली, आराम से। बहुत खाली तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मिल जाता। सुबह 7 बजे निकल जाना या रात को देर से जाना। तो वो जो बहुत सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क का फेमस है, और Bethesda Fountain we call it, so please forgive me for my pronunciation. I'm a typical Desi Punjabi woman who can speak or pronounce a word horribly wrong and who doesn't even bother about that. Although I try to like keep myself updated, but that is how it is. Like maybe I have given up, but this is that kind of a phase I'm going through, Saturn ka dasha kind of a thing. अच्छा, तो न्यूयॉर्क
ट्रेन्स की बात करते हैं, खाने की बात अगर मैं करूं तो मैकडी में अगर आपको खाना है तो $8 से $15 के बीच में आप बहुत अच्छी मैसिव मील ले सकते हैं। सैलेड के बोल का जो पोर्शन होता है वो इतना बड़ा होता है कि एक ही बोल में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही एडजस्ट हो जाते थे मोस्टली। एंड दैट वाज आल्सो बिकॉज वी वर ट्राइंग टू कंट्रोल आवर डाइट्स कि भाई कॉन्शियस रहना है, थोड़ा चलना ज़्यादा है, एक बहाना मिल जाता है टू मेंटेन योर सेल्फ, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिम जाने का टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ऑफिस जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, हम चूंकि थक जा रहे हैं तो जो सामने आ रहा है वो हम खा जा रहे हैं, तो यू हैव टू मेंटेन। लेकिन अगेन यू नो स्लिप इनटू योर बैड ईटिंग हैबिट्स, और you slip into like when you are tired to you fall for the foods which you are not supposed to eat as far as when it comes to your health, तो वो चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती हैं। खाने के अलावा न्यूयॉर्क की ट्रेन्स की बात करते हैं। मैं डीसी से न्यूयॉर्क गई थी ट्रेन के थ्रू, एमट्रैक से हमने ट्रेन ली थी। तो ट्रेन्स तो वर लाइक सो फैंटाबुलस, लाइक दे वर वेरी गुड। उनकी सीट एयरप्लेन्स की तरह थी, उस पर स्क्रीन लगा हुआ था और वो ट्रे खुल के आगे आ जाती है, रिक्लाइनर्स थे, मतलब प्रॉपर इतनी बढ़िया ट्रेन थी वो कि हम ऐसे पीछे ऐसे बैठ के एकदम आराम से सोते हुए टाइप से गए थे। एंड दैट वाज रियली क्लीन। अब चूंकि वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी वैसे ही सेट थी। मज़े की बात ये है कि पूरा न्यूयॉर्क जो है ना वो कटा हुआ है प्रॉपर, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, वो मलकागंज है, वो करोल बाग है, इधर मुंडका है, नागलोई है, ऐसे नाम पड़े हुए हैं। वहाँ पे क्या है ना, पूरा का पूरा नंबर्स में, लाइंस में कटा हुआ है, एवेन्यूज एंड स्ट्रीट्स। Street number 1, 2, 3, 4, 5, it may go up to 125, 200, 300, 600, whatsoever. And then there are avenues. This avenue, that avenue, and that could also be, they are divided into north, south, east, west, northwest, northeast, southeast, southwest. तो नंबर ऑफ स्ट्रीट से हमें पता लग जाता है कि वो जीब्रा क्रॉसिंग होती है। 30th स्ट्रीट पे हम थे, तो 30th स्ट्रीट से 167th स्ट्रीट पे सेंट्रल पार्क है। वहाँ से इट वॉज लाइक जस्ट 30 स्ट्रीट्स अहेड, तो लगता है अरे पैदल ही चले जाते हैं, क्योंकि जॉगिंग रनिंग तो वैसे भी करनी होती है, तो चलना तो सेहत के लिए अच्छा ही है। लेकिन हम नहीं गए, भी टुक अ कैब, और $16 से $25, 30-40 के आसपास आपका एक टाइम का लग जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस यू आर गोइंग फॉर। और उसके बाद जब हम न्यूयॉर्क आए तो न्यूयॉर्क में वी ट्राइड मेट्रो, एंड दैट वाज एन हॉरिबल एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज इट वाज वे टू डर्टी। आई वाज थिंकिंग आवर डेली मेट्रोज आर वे बेटर देन like some of the metro rail in New York. They are dirtier, and ours one is more clean. Although we are highly populated, it is chaotic in metro stations, especially Rajiv Chowk and all of that. इतना chaotic होता है, उसके बावजूद बहुत साफ सुथरा है। वहाँ की मेट्रो पुरानी है तो आप ये कह सकते हैं वियर एंड टियर हो गया, नहीं, वियर एंड टियर की बात नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी लाइक बहुत सॉलिड है। गंदा मतलब जैसे स्टिंकी गंदा होता है ना, न्यूयॉर्क इज एक्चुअली स्टिंकी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। बदबू आ रही है, और वो जैसे अपने यहाँ पान की पीके मिल जाती हैं, वहाँ कुछ ऐसी इसी टाइप के अजीब से वियर्ड से, नॉट दैट काइंड ऑफ ऑरेंजी, बट stains were there and the dirty like metro. Not all of like all the metros are like that, but that's very gloomy, और it's very unclear as well कि उनके रूट्स जो हैं, उनका जो classification, and that's very confusing. So you have to be very conscious whether you are going in metro number 1, जैसे अपने यहाँ ना येलो लाइन, ब्लू लाइन, पर्पल लाइन है, वहाँ पे भी कलर्स दे रखे हैं, बट उनके नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Although it sounds easier, once you get habitual, it becomes easier for you to navigate. But for us, like for the first time goers over there, it becomes a little difficult for them to navigate. अच्छा, ये मेरा मेट्रो का एक्सपीरियंस था। ट्रेन का मैंने बता दिया कि दैट वाज वेरी अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल ओवर देयर। उसके बाद हम गए थे LA, वी वेंट टू रोडियो ड्राइव, वी स्टेड, वी टुक एन Airbnb इन बेवर्ली हिल्स, और दैट वाज अगेन अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस ओवर देयर। वहाँ पे खाना वाना खाया, हमें टेस्ला दिखी, और हम टेस्ला को हमने एंजॉय किया। वहाँ पे उन्होंने उसको टैक्सी वैक्सी बना रखा है, इट्स वेरी कॉमन ओवर देयर, यहाँ तो मिल नहीं रही है। वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कुछ भी है, यहाँ टेस्ला नहीं है, तो वहाँ हमने टेस्ला को खूब एंजॉय किया। इट्स अ स्वीट एंड अ नाइस कार।
although it's very expensive when it comes to in India. Like I was thinking कि जब हो रहा था कि यहाँ मिलेगी तो बहुत एक्सपेंसिव मैंने सुना था, पर वहाँ तो ऐसे ऐसे चल रही है ना जैसे घर की मारुति 800 टाइप का सिस्टम है, और बहुत अच्छा है, लेकिन वो मज़ा बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ लोग बहुत अच्छे से चलाते भी हैं, यू नो, दे आर मोर डिसेंट एंड मोर डिसिप्लिन्ड. दैट्स व्हाट आई नोटिस्ड अबाउट पीपल. दे फॉलो रूल्स, दे आर एजाइल, they want to stay upgraded, they are so sensitive people. हालांकि मेरा निजी एक्सपीरियंस यूएस में कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है. आई वॉज नॉट ट्रीटेड वेरी वेल ओवर देयर बाय सम पीपल. वो थोड़ा सा रेसिज्म आप कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो आ ही जाता है. और स्पेशली वो जो टिपिकल परपंची आंटीज होती है ना, जैसे अपने इंडिया में, आप समझ लीजिए यूएस में भी आपको मिल जाएंगी. जैसे आप होते हैं या होता है आपके साथ, उस तरह की वाइब शायद आप अट्रैक्ट कर लेते हैं. समबडी विल कम एंड बम्प इनटू यू एंड मे पास like some scathing remarks you might not like. तो ठीक है. Like your mama, you don't let your baby roam around like this. और इस तरह से वो आपकी सास बन के बैठ जाती हैं या फिर आपको कुछ भी कहती हैं. आप फोटोग्राफ ले रहे हो, उनको अच्छा नहीं लग रहा, दे माइट लाइक पुश यू और ऐसे करके निकल जाएंगे. तो ठीक है, वो उनका प्रॉब्लम है. इस तरह के लोग हमें इंडिया में भी बाहर भी मिलते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी वहाँ सभी ऐसे हैं, लेकिन हाँ मेरे साथ ये हुआ. बट ओवरऑल पीपल आर वेरी सेंसिटिव. क्यों मैं कह रही हूँ कि दे आर वेरी सेंसिटिव? बिकॉज दे आर सो कॉन्शियस ऑफ योर टर्न एंड क्यूज. ऑटोमेटिकली दे फॉर्म अ क्यू. हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि भीड़ एकदम घुस गई और एक दूसरे के ऊपर चढ़े ही जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है. तो वहाँ क्या होता है ना, क्यू बना लेते हैं लोग अपने आप ही लाइन में लग जाएंगे. एंड वेरी कॉन्शियस कि ओह आप यहाँ पर हैं तो आप पहले कर लीजिए और ये देख लीजिए और वो है, ये है, फलाना है. तो लाइक वेरी कॉन्शियस ऑफ अदर पीपल, कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस एंड सेंसिटिव. दे फॉलो रूल्स, दे डोंट honk when they drive, and they wait patiently for their turn. Yes, they do. However, like it could be a massive jam, yet they stay calm. They are not like अरे मैं निकल जाता और ये ऐसे ड्राइव कर रहा है, ये गधा है. They may do in real life, but like I never stumbled upon or didn't really come across anybody of that sense of behavior. So I can say, like, at least superficially from the upper surface, I can certainly say I did not find even a single person who pressed the horns, like who's honking, ringing alarms, and all of those kind of things. Okay, and then you can use credit card in the metro rails over there. You buy tickets that works only for 24 hours, and they have their own rules. You go over there, you will know, but always be well prepared when you go there and when you plan to board a metro over there, because you need to get so much of knowledge and there is nobody to tell you. You can't ask over there. That's the minus point US has. In India, we have the billboards and the signboards to express and tell you about the rules and the navigation things around every nook and corner. Around, like, after every 10 meters, 20 meters, 50 meters or something, you will find some sort of information counter, query counters. But in US, I never found even a single query counter. You are on your own. You discover, like, you're on your own. Nobody's going to tell you. You can't ask, excuse me, can you just please tell me if I'm going this way? You need to look for those kind of humble people. Old people over there are more humble. They are sweet, but young generation, I cannot guarantee anything. I'm not pinpointing, but you go and build your own experiences over there. तो ये रहा मेरा वहाँ का यूएस का एक्सपीरियंस. और उसके बाद एलए के बाद अच्छा, आई गॉट बैक टू सिएटल. और सिएटल में हम लिव इन वर्क जर्मन थीम्ड विलेज गए थे, विच वॉज द बेस्ट. लाइक पूरे ट्रिप में मुझे जो सबसे अच्छा लगा, दैट वाज क्लोज टू नेचर, वाज द लिव इन वर्थ, विच वाज जर्मन थीम्ड विलेज. सिंस लाइक एज इट साउंड्स लेक फेनाची एंड आइसिकल क्रीक, आई सॉ दैट. ये ऐसे अनटच्ड स्पॉट्स हैं जहाँ पे आपको जाके थोड़ी सी लद्दाख टाइप की फीलिंग आ जाएगी कि एंड अ लिटिल बेटर, मतलब जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, मे बी वी आर ऑन द अदर प्लानट एंड इट्स सो ब्यूटिफुल. द रोड्स आर ब्यूटिफुल. मे बी आई वेंट इन द सीजन व्हेन weather was so good and trees were, it was autumn, no, fall, yeah, fall.
तो उस वजह से पीले पेड़, लाल पेड़, इस तरह के बड़े खूबसूरत से पेड़ नज़ारे हमें देखने को मिले। तो यूएस का एक्सपीरियंस जो है खाने के लिहाज से, लोगों के लिहाज से ऐसा रहा। इंडिया आके भी मुझे लगता है हाँ यार सैलेड होना चाहिए यहाँ ना, जगह जगह सैलेड मिलनी चाहिए, वो भी सस्ती, नॉट लाइक यू नो कि यू आर सेलिंग इट एट पार। अगर ऐसे 100 रुपए में सैलेड मिलने लग जाए आपको, तो मतलब आपका तो नैया ही पार हो जाए, आप सब हेल्दी हो जाओ, यहाँ तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री बंद हो जाए मेडिकल की। तो ये एक फर्क है, और मुझे लगता है कि ये इंडिया में भी करने की बहुत ज़रूरत है। यू नीड एज गुड हेल्दी ऑप्शंस एज बैड यू हैव ओवर हियर मोर कॉमनली। तो मुझे लगता है कि अभी आप सैलेड ऑर्डर करने जाओ, आपको मिलेगी 300 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये, एंड आई एम टॉकिंग वेरी लिबरली लाइक ओवर हियर। तो कोई सी सस्ती नहीं मिलती है, और उसमें भी सड़ा हुआ सामान आपको मिलता है, इट्स नेवर फ्रेश। So Sweet Greens is a famous brand over there, like a chain of salad servings. Like McDonald's is for burger, Sweet Greens is a brand over there which sells salads only. And Kava, it's CAVA, most probably yes. That was the best salad I had over there from that brand. Otherwise, also it's like quite common in the Paris Bakery and the Times Square. It's amazing experience overall. और उसके अलावा बात करते हैं 2025 की। भाई इतना रायता फैला हुआ है पॉलिटिकली, एज आई हैड प्रिडिक्टेड बिफोर। दिस इज 20 minutes of video already, so I'm just gonna talk for another 5-7 minutes because I don't want to bore you और bug you more। भी मैं तैयार भी नहीं थी, मैं ऐसी बैठी हुई थी, सोने जा रही थी, फिर मुझे लगा नहीं यार बात करके बोल ही देते हैं, वरना तो मैं बना ही नहीं पाऊंगी। लेट्स मेक इट वेरी कैजुअल, है ना, बात करते हुए। तो यू ऑल्सो ड्रॉप कमेंट्स अगर मेरी बातों से कुछ लगा, अच्छा मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा था, आपका ऐसा रहा होगा। जैसे मुझे ये भी लगा कि एयरबीएनबीज आर बेटर ऑप्शंस, बेटर देन होटल्स, बिकॉज होटल का रूम क्या होता है, रूम में घुसो घुसते ही खत्म, and you don't get pani is such a big problem in US, yeah. Why? Not just because you don't get it for cleaning like in toilets and all of it, otherwise also पीने के लिए $2.5 $4 कितने का भी पानी बिक रहा है। It's horribly expensive at least for Indian people to go over there, because $4 या 400 रुपए की 1 लीटर की बॉटल आती है। आप तो दिन में 2-4 लीटर पीने वाले आदमी हो, so how much would you spend? Tap water, don't ever rely on that. They say tap water is equally safe to drink, but मटिया मेट है भैया, पुरानी पाइपलाइंस हैं, तो उसमें से आपको बहुत डिस्टेस्टफुल पानी भी मिल सकता है बहुत जगहों पे। तो वहाँ पे भी लोग जो है आरओ यूज करते हैं। ऑल्दो टैप वाटर दे से इट्स फिट टू ड्रिंक, मोस्ट like at most places you will find it over there, but more commonly they use tap water, but still comparatively मतलब 40% मैं कहूँगी कि पीने लायक नहीं है जगहों पे, 60% हाँ है। तो ज़्यादा आपको टैप वाटर पीने को मिल सकता है, बट फिर भी मुझे लगता है कि यो हमें आदत पड़ गई इंडिया में वो आरओ वाला पानी पीने की, तो वो जो बिल्कुल टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, तो वो हमें लगता है कि वही पीना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगा कि हाँ यार आपको बिसलरी चाहिए या खाली बोतल लेके चलिएगा, बिकॉज जहाँ मिल जाए वहाँ पे लगा के भर ली। तो ये एक वो भी रहेगा। फिर 2025 के ग्रहों की बात कर रहे हैं। आज मैं देख रही थी बहुत सारे लोगों ने जो है निकाल दी है वीडियो बना के कि मेष से लेके मीन तक कैसा जाने वाला है आपका अगला साल। हाँ, मेष से लेके मीन तक 2025। ओके, नंबर 9 कम्स टू मार्स। मार्स इज अ प्लैनेट ऑफ एक्शन, तो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं। ईयर ऑफ एक्शन रहने वाला है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बट ऑल्सो यू विल बी इन यू नो मोर डूइंग एनर्जी, कि भाई कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। तो इस तरह का जो है ना ये साल होने वाला है 2025 की हम बात करें। 12 साल बाद गुरु का गोचर होगा जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में, जो अपने आप में कहते हैं ना कि एक रेयर ट्रांजिट। गुरु के ट्रांजिट को रेयर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो साल में एक बार होता है। और शनि का जो ट्रांजिट होता है, मैंने थोड़ा सा लिख रखा है ट्रांजिट्स के बारे में, क्योंकि बिना उसके मैं से रैंडमली कुछ भी नहीं बोल सकती। अगले साल जो है 14 मई को गुरु जो है मिथुन राशि में गोचर करेंगे, और शनि जो है 28 अप्रैल को मीन राशि में गोचर करेंगे। तो देखें 30 साल बाद शनि अपना साइन तो हर 2.5 साल में बदलते हैं, 30 साल बाद वो मीन राशि में जाएंगे। तो देखें सैटर्न जो होता है ना वो ब्लॉक्स
सिग्निफाई करता है। डीमार्केशंस लाइक प्रॉपर्टी के लिए सैटर्न और मंगल एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है खरीदने के लिए। लेकिन जब बात आती है कि सैटर्न है तो बहुत डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहें कि डिलेड फ्रुक्टिफिकेशन कहें, वो बहुत बहुत समय लगा देता है देने में। साल भर आपको लग जाता है एक काम पूरा होने में, तब तक आपकी इच्छा ही मर जाती है। जब इच्छा मर जाती है तो वो कर देता है, उसमें भी कोई ऐसी कमी रख देगा कि आपको लगेगा यार ये हो जाता तो अच्छा होता। और वो ये भी होता है ना कि इंसान का मन है वो तो कभी भरता ही नहीं है तो जितना मिले उतना कम ही लगता है, अरे ये कर लेते तो और अच्छा होता, जो है ठीक है। तो आप क्या उम्मीद रख सकते हैं शनि के मीन राशि में गोचर से? तो हम ये रख सकते हैं कि बहुत चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाएंगी। फॉरेन अफेयर्स में प्रॉब्लम आने वाली है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ ब्लॉक्स आपको महसूस होंगे अगर आप उस बिजनेस में हैं, इंटरनेट से जुड़े बिजनेस में हैं, टेक्नोलॉजी क्लाउड टेक्नोलॉजी में आप बहुत ट्रबल्स आने वाले हैं, कुछ ब्लॉक्स आने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना, ब्लॉक्स कैन बी पैसों से जुड़े, कि पता लगे कि कोई फाइनेंशियल टेक फिनटेक कंपनी कोई बंद हो रही है, या ब्लॉक हो गया, फ्रॉड हो रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई चीज़ें बीच में रुक जा रही हैं, कोई ऐसी पॉलिसी आ जा रही है, बाहर क्या कहते हैं फॉरेन अफेयर से जुड़ी हुई चीज़ों में जो है बहुत धीमे धीमे करके होगा। लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये जो गोचर है बहुत अच्छा जाने वाला है 2025 का, क्योंकि जो लोग अब तक बाहर नहीं जा पाए इस साल, जिनको था कि हम जाएंगे फॉरेन ट्रिप के लिए, जो नहीं जा पाए उनको अगले साल मौका मिल सकता है, देर से ही सही लेकिन मिल सकता है। तो मैं इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मेष से लेके मीन तक डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे लगा कि आज की वीडियो में थोड़ा सा तो हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले साल बहुत मेजर ट्रांजिट्स होने वाले हैं, रिसेशन के भी जो हैं योग हैं, अमेरिकन अगर इकोनॉमी पे कुछ डिपेंडेंट है आपका। अब देखिए कई लोगों के ग्रह इतने अच्छे होते हैं ना कि रिसेशन में भी वो बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, तो डरने की इसलिए कहते हैं ना बात नहीं होती। हर एक की कुंडली अपनी अलग होती है, तो उस पे ध्यान देकर चलें, क्योंकि कई कंपनीज ने रिसेशन के टाइम पे, जैसे रोबोट्स या ड्रोन्स की जो कंपनी है, उन्होंने रिसेशन में बहुत अच्छा किया, क्योंकि दैट वाज द टाइम ऑफ कोविड एज वेल। तो अब ये नया साइकिल शुरू हो रहा है। 2019 में ग्रह लगे थे भयंकर टाइप के उसको भी देखें, पता लगा कि 4 5 6 साल हो गए हैं, 7वां साल लग रहा है। तो आप देखें फिर से एनर्जी गेन हो रही है। वैसे ग्रह तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन आप एक्सपीरियंस करेंगे पॉजिटिव चेंजेस अगले साल। बहुत चीज़ें जो इस साल नहीं हो पाई हैं वो अगले साल हो सकती हैं। लेकिन राहु अगले साल के अंत में जो है, आप मान के चलें कि कुछ सडन गेन्स भी दे सकता है, तो कुछ सडनली छीन भी सकता है। 5 11 के एक्सिस में आ जाएगा, कुंभ राशि में आ जाएगा, शनि की राशि है, और केतु चला जाएगा सिंह राशि में अगले साल मई में ही, ऐसा होने वाला है। तो इन चीज़ों को लेके आप अगले साल को थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहें। फॉरेन ट्रिप्स, कम्युनिकेशन जेमिनी साइन की अगर हम बात करें, क्योंकि वहाँ पे गुरु गोचर करने वाले हैं अगले साल, तो कम्युनिकेशन से जुड़े, इंटरनेट मीडिया से जुड़े कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी होंगी। ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ बुरा ही बुरा होने वाला है, क्योंकि जुपिटर वहाँ से गोचर कर रहे हैं। और हम ये मान सकते हैं कि उससे आपको गेन हो सकता है, गेन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर आप कोई ट्रांसफ़र लेना चाह रहे थे, नहीं हो रहा था, वो हो सकता है। चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे थे, क्योंकि 3 12 लग रहा है, तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है। 11 है, उसमें राहु है, आपको गेन हो सकता है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी से गेन होना ऑफ कोर्स, अगर 11 नंबर आ रहा है, वरना नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के जो हैं योग अगले साल हैं, और उस पर हम एक अच्छी सी बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे अगली बारी। और अभी मैं कोशिश करूँगी कि ये जो 28 मिनट का वीडियो है इसको मैं अपलोड कर दूँ। मेरा बड़ा जी चाह रहा था वीडियो बनाने का, मैं सुबह से सोच रही थी, लेकिन मुझे समय नहीं मिला। तो फिर मैंने कहा अब ऐसा करते हैं कि जो है जैसा है बना ही देते हैं होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और अगर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना, अगर आपके मन में भी कुछ हो, आप मुझसे बात करना चाहें, जानना चाहें, तो आप लिखें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि अगली वीडियो में क्या कंटेंट क्रिएट करा जाए। अच्छा चले, मुझे मुझे इन्होंने ऐसा कहा तो ऐसा कुछ मैं बना दूँ। और अपना एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें तो मुझे ज़रूर